Language Cert, International ESOL, Secure English Language Test for UK Visas and Immigration, Health and Care Worker Visa B1, Skilled Worker Visa B1, Speaking, Reading, Listening and Writing. Hello everyone, this is Angelina, and in this video I'm going to tell you which test you should sign up for. Okay, there is one test called Language Cert CELT that tests your English proficiency from level A2 to C1. Now, generally when you look up on the website, this is what you see. You only see Language Cert CELT. But let me tell you guys, there is something that is not shown on the website. I'm going to tell you guys how to find that test that is called International ESOL, CELT B1, Achiever B1, Entry Level 3. Only this is a test that tests you at B1 level. General CELT is very difficult. This should be taken by people if your band requirement is 4.5 or 5 or above it, because it can test you from A2 level to C1 level. So can you imagine how difficult the test would be? Because even if it is testing people for C1 level, that is hard. The suggestion that I want you guys to focus on, that which test you should sign up for. If your band requirement is just B1 level, equivalent to 4 bands, for skilled worker visa, for health and caregiver visa, for work visa, please do not take Language Cert CELT A2 to C1. It is very difficult, okay? And you will be lost. I want you guys to learn more about this test, okay? This is called International ESOL Achiever B1 Entry Level 3, Reading, Writing, Listening and Speaking. And now how you can find this test? You need to Google first. International ESOL Language Cert CELT Entry Level 3, Reading, Writing, Listening and Speaking. Only then a link will pop up. You will click there and you will sign up for a written and a spoken exam. It will collectively cost you $163. All right. And let me tell you guys one more thing. The video that will be played ahead is a lecture that I gave to one of my students from India, right? She lives in the UK. She took ISC 1 B1, but she was scared that the result is going to be delayed. Her visa was ending. So she just wanted to take Language Cert CELT because the result for this test arrives in 3 days. For ISC 1B1, it takes usually 10 to 11 days, right? So I don't know why did she do that, but she was in a rush. And now I will be showing that entire lecture to you guys. I explained most of the things in Hindi, right? All parts of the test. And if you come from that part of the subcontinent where you can understand Hindi, this video is for you, okay? So let's quickly get into it. And the whole lecture is entirely about Language Cert CELT B1 International ESOL Entry Level 3, Reading, Writing, Listening and Speaking. Okay, and do not forget to subscribe to the channel. 63% of you who watch the channel have not subscribed yet, so please subscribe. आप जब गूगल करोगे ना, आपने लिखना है लैंग्वेज सर्च अचीवर B1 लेवल का टेस्ट, तो तब ये वाला लिंक निकलेगा, उसमें आ जाएगा लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल ईसॉल B1 अचीवर। ठीक है, B1 लेवल का, इसको एंट्री लेवल 3 टेस्ट भी कहते हैं, स्किल्ड वर्कर वीजे के लिए होता है। इसके अंदर लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल। अच्छा, ये देखिए $58 की राइटिंग है, स्पोकन एग्जाम होता है इसके अंदर, और रिटन एंड इसमें देखिए सारे पार्ट्स ही होते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ। 30 मिनट की लिसनिंग होती है, रीडिंग राइटिंग 2 घंटे और 10 मिनट की होती है, ठीक है, और स्पीकिंग जो होती है वो 12 मिनट की होती है इसमें। ठीक है, आप उससे इस टेस्ट के बारे में भी पूछ सकते हो। इसका ऑफिशियल मटेरियल भी दिया हुआ है। ये आई थिंक बहुत जगह पे मैंने प्रैक्टिस भी ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है। जी जी, मैंने देखा हुआ मैम हाँ, तभी। ये होता है वो
सीधा सीधा ही होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है इसमें, छोटा होता है टेस्ट, मतलब कि B1 लेवल के हिसाब से जितनी लोग इंग्लिश हजम कर सकते हैं उतनी होती है इसके अंदर। मैम आप ठीक एक है। बार मेरे को बोलोगे, मैं यहाँ पर लैपटॉप पे सर्च करती हूँ, हाँ, मैं लैंग्वेज आपको लिंक सर्च भेजती हूँ इंटरनेशनल। ना, उसको देखिएगा और उसको बोलिएगा मुझे यही वाला चाहिए, क्योंकि आपको B1 लेवल ही चाहिए। हम्म। ये देखो, इसको खोल के देखना। इसको बोलते हैं लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल ईसॉल B1 अचीवर, और इसका मैम ये केयर होम के वीजे के लिए एक्सेप्ट है ना, जो आपने मेरे ऑब्वियसली, को लिंक जी भेजा? जी जी बिल्कुल, उसके लिए एक्सेप्ट नहीं है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चली जाएं, जिसका नाम है हम्म यूके गवर्नमेंट का, जो उनकी वेबसाइट है। आपने गौर करना है उस पे कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, आप यहाँ पे वर्क वीजा खोल लो, आपको हम्म इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं करती। यूके, हम्म देखें, अब अगर आपने ये खोला है ना, तो वर्क इन द यूके आ गया है। तो इसमें उसने बोला है, देखो, हेल्थ केयर गिवर या स्किल्ड वर्कर, दोनों में से किसी को भी खोल लो आप। आपने हेल्थ एंड केयर गिवर के लिए करना है। जी जी। हाँ, तो बात वही है जैसे ISC1 B1 की होती। अब आपने यहाँ से देखना है इंग्लिश की नॉलेज क्या चाहिए मुझे। मैंने क्या खोला हुआ है, हेल्थ एंड केयर वर्कर। मैं जी। इंग्लिश की नॉलेज को खोलती हूँ, और मुझे यहाँ पे पता चलता है कि इंग्लिश के लिए मुझे चाहिए क्या। उसने बोला है कि सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ले आओ, ठीक है, हम्म। और लेवल पे होना चाहिए 4 और 5, ठीक है, इसको B1 लेवल कहते हैं। ओके। 4 या 5 जो लेवल का टेस्ट होता है उसको B1 कहते हैं। तो यहाँ पे उसने ऊपर भी लिखा हुआ है, देखिए, एटलीस्ट B1 लेवल। अब उसने B1 हम्म। लेवल, अब उसने बोला कहाँ कहाँ से पेपर ले सकते हैं। आप इसको खोलते हो अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स को, तो आपके सामने आ जाते हैं, ये देखो, ये जी। ट्रिनिटी कॉलेज हम या लैंग्वेज ट्रिनिटी थोड़ा कॉलेज सा। कर चुके हैं। आपको हम्म। पियर्सन नहीं करना पड़ा, आप लैंग्वेज सर्च कर सकते हो। तो फिर हम लैंग्वेज सर्च अचीवर B1 ही करेंगे ना, हमें B1 लेवल चाहिए। जी जी मैम, बिल्कुल। हमें 100 में से चाहिए 50 नंबर पास करने के लिए, जो उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको पास कैसे करना है। ये टेस्ट कोई आप पहली दफा नहीं ले रही, बहुत सारे लोग ये टेस्ट लेके यूके में रहते हुए ओके। भी दे के पास होते हम्म। हैं और अपना अप्लाई करते हैं, ये सारा जो भी होता है ना का। ओके मैम, इस मैंने वैसे एग्जाम बुक नहीं करा खुद से, आप मेरे को, मैं लैपटॉप खोल के बैठी हूँ। अगर मैं एक बार एग्जाम की डेट देखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ उनकी वेबसाइट पे लैंग्वेज सर्च करके, वेबसाइट कि पे अगर मैं डेट आपको मिल। लिंक देती हूँ, लिंक को क्लिक करो, वो जो लिंक सेंड किया उसको करो। खुला है? जी मैम, खुला है, यहाँ पे सेम आ रहा चीज, है बुक। ऐसा करो ना, आप अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर करो उस पे, अभी इस पेज पे जी आइए मैम। आप। ये वाला पेज आ गया है जिसके ऊपर ऊपर लिखा है $58 स्पोकन जी 50। जी मैम। जी, मैं भी आपके साथ एक मिनट मैम हाँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। अपने इस पे जाना है, रिटन एंड स्पोकन। उस पे जब आप बुक पे जाएंगी, और मीटिंग में क्या है ना, इसमें ये आपने लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल रिटन एग्जाम, लैंग्वेज सर्च स्पोकन एग्जाम। अगर तो मैम ये वीक के अंदर अगर मिल रही है इसकी डेट, तो फिर तो मैं अभी फिल कर दूंगी एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे पहले गलत एग्जाम हो गया उसको मैं उनको मेल डाल दूंगी उसकी, कि ये अगर वो करते हैं रिफंड, वैसे अगर गलती से मतलब कुछ हो गया तो। देखो, इसमें जो उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है ना, अगर आप पीछे हम्म। चले जाती हो दोबारा से, ये देखो, फिर वही टेस्ट है, इसको बोलते हैं लैंग्वेज सर्च इन ईसॉल अचीवर B1, जो कि सिर्फ B1 लेवल को टारगेट करता है और किसी को भी नहीं करता। स्पोकन एग्जाम के अंदर उनका बोलने वाला पेपर आ जाता है, ठीक है, और रिटन के अंदर और वो तीनों आ जाते हैं, जिसमें होता है आपका लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग जो हो होता है वो इतनी 30 ही मिनट की होती है, लेकिन बहुत आसान होती है कंपेयर टू ये जो आपने किया है। रीडिंग भी, रीडिंग 2 आवर, रीडिंग एंड राइटिंग मिल मिला के 2 घंटे और 10 मिनट के होते हैं, ठीक है। इसका ओके। ऑफिशियल मटेरियल की मैं एक एग्जांपल अगेन आपको खोल के दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें होता क्या है। ये
ये देखो, ये है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ऐसा ही एक पेपर होगा, या मतलब डिजिटली भी हो सकता है, जिसमें देखो पार्ट 1 लिसनिंग, कितने छोटे छोटी सी चीजें लिखी हुई कि आप समझ पाओ। कॉन्वर्सेशन सिर्फ हम्म 3 है, इसके अंदर छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। पार्ट 3 के अंदर आपको पता चल रहा है हम्म, कि सिर्फ 7 सवाल है, और बेस्ट प्लेस टू मीट टीचर्स, कोई भी बंदा ये इंग्लिश को समझ सकता है, मुश्किल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है। या नंबर ऑफ बिल्कुल। सेंटर्स, यहाँ पे आपने नंबर लिखना है, B1 लेवल पे तो इसी तरह की इंग्लिश होगी ना। आगे लिसनिंग पार्ट 4 में हम्म देखो, व्हाट सब्जेक्ट काटिया मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी। ये समझने वाली हम्म इंग्लिश है जिसको समझा जा सकता है। रीडिंग देखो कितनी आसान है, छोटे छोटे से पिक्चर्स बनाए हुए हैं, उनसे पूछा है ABC में से चूज करो। यहाँ पे यूजिंग योर ट्रैवल कार्ड, आपने बीच में से क्या डालोगे यहाँ पे ब्लैंक के अंदर। ठीक हम्म, है। फिर ये देखो छोटी सी तस्वीर बनी हुई है, थैंक्स फॉर विजिटिंग, आप इस पूरे को पढ़ोगे और देखोगे यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इन ऑप्शंस में। हम्म, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखो छोटी सी चीजें, टाइम टेबल इंफॉर्मेशन, देयर विल बी इंजीनियरिंग वर्क ऑन दिस लाइन दिस वीकेंड, दिस मे कॉज डिलेज टू ब्लैंक सर्विस, दिस मे कॉज डिलेज टू। सम सर्विसेज। हाँ, तो वो छोटी सी बात उसने लिख देनी। उसके बाद ये वाला है छोटी छोटी सी, इसके अंदर ये ब्लैंक्स हैं, और इन ब्लैंक्स को फिल इन कैसे करना है, वो मैच द टाइटल समझ लें। ठीक है। हम्म। आपने स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आधा जुमला कौन सा डालेंगे, वो जैसे कंप्लीट द सेंटेंस होता है ना, उस तरह आपने जुमले को हम्म, पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पे ओके। वो कहता है कि देयर आर मेनी ब्लैंक। अब इस कहानी हम्म, को, इस जुमले को पूरा करने के लिए हमें सबसे सूटेबल कौन सी चीज लगेगी। The idea of singing along the background music is not new. अच्छा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद with karaoke, however, this is not the case. यहाँ पे आप what is done to use something, nobody knows how ये हो सकता है। ठीक है। अब वो ये कह रहा है हम्म, आपसे ऊपर सवाल में कि अब तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स की एंटरटेनमेंट पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी है। द मोस्ट सक्सेसफुल दीज आर वेरी सिंपल। और जो जो इनमें से सक्सेसफुल बहुत सारी, वो बहुत सारी सिंपल होती हैं। जैसे कि nobody knows how karaoke became so popular, वो जो सिंपल में से किसी को नहीं पता कि कैरियोकी पॉपुलर कैसे। या आपने देखना है कि ये देखो, जी भी हो सकता है, कैरियोकी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी। अब आपने देखना है कि कौन सा सही होगा, मुझे अब जी सही लग रहा है। ठीक है। क्योंकि उसने जुमले को में बोला है कि बहुत तरह की एंटरटेनमेंट्स होती हैं, लेकिन द मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो बहुत सिंपल होती है। तो वो आप यहाँ पे आगे जी लिखेंगे सिर्फ, कि कैरियोकी जो है वो इस चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। इस सक्सेस स्टोरी की, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगी, जी यहाँ पे लिख, ऐसे कर। समझ आ रही है। जी मैम, आसान है मैम, लग रही हाँ, ये बिल्कुल। आसान है, इसको पढ़ के आप कर सकती हैं। उसके बाद ये देखो छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं, मतलब समझ में आने वाले। वेलकम टू द हम्म ग्रैंड लॉन्च, गेस्ट्स आर फ्री टू कम एंड गो एट एनी टाइम, बट वी वुड आस्क यू टू एंटर क्वाइटली आफ्टर 11 PM। ठीक है। हम चाहते हैं आप 11 बजे आए। अब ये देखो इसके अंदर सवाल किस तरह के हैं, कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 7। हम्म। आपने बताना है, वो जैसे मैच द टाइटल नहीं करते उसमें मल्टी टेक्स्ट रीडिंग के अंदर, कि जी जी मैम। इज फ्रॉम अ लेटर टू अ फ्रेंड, कि कौन सा पैराग्राफ जो है वो लेटर फ्रॉम अ फ्रेंड है, A B C या D। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे उसने नीचे पीछे लिखा हुआ है ना, ये देखो, लव जूड, ये किसी हम्म दोस्त ने लेटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसके आगे क्या लिखोगे, C। इसी तरह आप किसी भी लेटर को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो, या 3 बार भी कर सकते हो, क्योंकि 7 स्टेटमेंट्स है। समझ आ रही है। हम्म। मैच दैट है। जी जी मैम। व्हाट इज द नेम ऑफ द होटल मैनेजर, ये किस पैराग्राफ में दिया हुआ है, A B C या D। अब हमने चेक करना है इसमें से कि होटल मैनेजर का नाम क्या है। ए में तो नहीं दिया हुआ, और बी के अंदर प्लीज टेक एंजॉय द स्टे एज द मैनेजर। देखो मैनेजर कौन है, जेन बर्लेट। जैन बैरलेट या। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, बी लिख दोगे। हम्म। मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि कैसे करना है जी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आगे लास्ट पार्ट देखो कितना आसान है, ये सुपरमैन से रिलेटेड, इतना कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है। और आपको
छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं। इन विच ईयर डिड सुपरमैन फर्स्ट अपीयर इन कॉमिक्स? 1976। अपने से लिख रही हूँ, तो बस ये वही जवाब। मैम, जैसे पैसेज दिया है, आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको पैसेज से आंसर ढूंढने हैं बस। हाँ, क्वेश्चन। इसको 3 वर्ड लिख सकते हैं, फिल इन द हम्म। ब्लैंक्स करनी है, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। दो, एक भी लिख सकते हैं, हम्म। 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं लिखना। हम्म। कुछ समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये वाला पेपर बुक कर लो, ठीक है। जी। ये देखो, अभी मैम मैं इनकी राइटिंग वेबसाइट अभी पे करके भी- दिखा देती हूँ। आपने कहना है मैम मैं क्यों नहीं ये टेस्ट ले रही। ये देखो, इसकी राइटिंग अभी आपको करके दिखाने लगी हूँ। ये जो राइटिंग पार्ट 1 होता है ना, इसको बोलते हैं रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर टू एंटर द कंपटीशन। कि आपने हाँ हाँ। एक एड पढ़ी है एंड राइट अ लेटर टू योर न्यूज़पेपर टू द न्यूज़पेपर टू एंटर द कंपटीशन। वही 3 बुलेट पॉइंट्स आ गए। इन 3 बुलेट हम्म। पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है जैसे वहां पे करना होता था। पर ये हम्म। सेल्फ राइटिंग है, जैसे कि मैं अभी लिख के आपको बताऊंगी। कभी भी आप फेल नहीं होंगी अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेंगे। पर अब टेस्ट गलत है तो वो देख लीजिएगा कैसे करना। हम्म। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, I am writing this letter in response of an advertisement to enter in the holiday competition, full stop। ये सारी बातें मैंने कहीं अलग से नहीं ली, मैंने ये सारी बातें ऊपर से पकड़ी हैं। उसने बोला राइट अ लेटर, न्यूज़पेपर में एक लेटर लिखो टू एंटर द। कंपटीशन में एंटर करने के लिए। तो मैंने जवाब यहां से शुरू किया कि मैं ये लेटर लिख रही हूं उस एड के रिस्पॉन्स में जो कि आपने न्यूज़पेपर में दी है, टू एंटर इन अ हॉलिडे कंपटीशन। यही बात उसने बोली हुई है ऊपर। पक्की बातें समझ आ रही है ना आपको? कॉपी ऊपर से किया है सिर्फ। आई एम जी। राइटिंग दिस लेटर इन रिस्पॉन्स का मतलब है इन रिस्पॉन्स ऑफ, ये यहां से कॉपी करना है, इन रिस्पॉन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। उसके बाद ये लिखना है टू एंटर द कंपटीशन। अब किस तरह का कंपटीशन, वो आप यहाँ पे हॉलिडे भी लिख सकते हो। सिर्फ क्या ऐड खुद से किया, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिस्पॉन्स ऑफ, वही जो उन्होंने दिया हुआ। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे? बहुत आसान है। फर्स्टली I want to tell where I want to go, semicolon. I want to go to France, full stop. Secondly, I want to say who I will take with me, semicolon. I want to go there with my husband, full stop. Thirdly, comma, I want to explain why I want to go there, semicolon. France is famous for food, historical architect, and beautiful parks, full stop. I want to go there to try different food and go to my favorite shopping centers, full stop। बीबी ये बहुत हम्म। ज्यादा लिख दिया, इसको काटना पड़ेगा मुझे। सही है मैम, उधर से बस जो 3 पॉइंट दिए हैं उनको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हमने। थोड़ा क्या, थोड़े से भी कुछ नहीं। अभी देखो मैं आपको हम्म। वर्ड काउंटर पे लिख के देती हूँ, 70 वर्ड्स जो है ना वो बहुत कम होते हैं। मैम मैं वहाँ पर 150 वर्ड से भी ऊपर लिख के आई हूँ राइटिंग में, जो आपका ऐसे का दिया मैंने। हाँ, तो वो गलत किया ना आपने, पर चलो कोई अल्लाह करे उसको कोई बेहतरीन नजर आ जाए इसमें। ये देखो 72 तो हो भी गया, ऊपर वाला नहीं भी लिखोगी तो इतने में भी पास कर देगा। हम्म। कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, लिखा तो कुछ है ही नहीं। फर्स्टली आई वांट टू टेल वेयर आई वांट टू गो टू फ्रांस, ऐसे ही कर लेना। ठीक है, वो ना करना, वो ऊपर वाला ना लिखना, क्योंकि मे बी इसमें शायद कंफ्यूजन हो जाए आपको। Secondly, I want to say who I will take with me. I will take my husband with me. Thirdly, I want to explain why I want to go there. France is famous for food and नहीं लिखना है ये, इसकी जगह कोई और आसान लिख देना। I want to go to the parks in France. I want to go to different places in France. I want to go to Eiffel Tower. बस पूरे हो जाएंगे 70 वर्ड। कुछ समझ आ रहा है आपको? मैम बहुत इजी पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा बहुत इजी आसान है टेस्ट। ये तो फिर भी मैं नहीं कहती लोगों को करने के लिए, ये भी बहुत इजी है टेस्ट। ऐसे जो लोगों को पहले आईएससी का नहीं पता था वो यही टेस्ट मैम है। इसमें राइटिंग में सिर्फ एक ही पैसेज आएगा क्या, नहीं नहीं, मतलब क्या राइटिंग तो दो दूसरा टास्क भी है? करके बताती हूँ आपको ये लो, दूसरा भी करके दिखा देती हूँ।
अच्छा, जो दूसरा है ना वो भी कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकती है, लेटर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वो ही वैसा जैसे वही होता है। अब इसमें वो कह रहे हैं जी, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड अबाउट योर फेवरेट डे इन द ईयर एंड सजेस्ट व्हाट यू कुड डू टुगेदर ऑन दिस डे। आप जी अपने दोस्त को लेटर लिखिए, ठीक है, उसको बताइए हम्म कि व्हाट यू कुड डू टुगेदर ऑन दिस डे। उससे उसको लेटर लिखना है अपने पसंदीदा दिन के बारे में, चले बर्थडे के बारे में लिख दीजिएगा। तो हम्म उसको आपने ये बताना है कि वो क्या कर सकते हैं उस दिन पे इकट्ठे मिलके। तो इसमें दो ही बातें हैं। सबसे पहले, फर्स्टली आई वांट टू टेल अबाउट माय फेवरेट डे इन द ईयर, सेमी कॉलन, मैं लिख दूं? ये थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत आसान है ये, ठीक है। हेलो फ्रेंड लिख दीजिएगा शुरू में, हेलो हम्म फ्रेंड, comma. Firstly, comma, I want to tell you about my favorite day in a year, semicolon. It's my birthday. That's on 17th March, comma. I like to celebrate my birthday with my family and friends, full stop. And on this day, I get a lot of gifts, full stop. I plan a holiday with my family, full stop. I do something special on this day, full stop. अभी सिर्फ आपने बताया आपका फेवरेट डे कौन सा है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे वाले की बात कर लेते हैं। उसमें वो कह रहा है कि जी आप बताइए आप क्या कर सकते हैं उस दिन पे। Secondly, I want to suggest what we could do together on my next birthday. Semicolon, we can go to France, comma, we can take a lot of pictures there, comma, we can wear matching dresses, we can eat at a fancy restaurant, and we can go to the club, full stop. So all words तो वही के होंगे। We can watch a film in the cinema, full stop. We can bake a cake together, full stop. इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना जो आप अपने दोस्त के साथ करना चाहते हो या कर सकते हो। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद इसको वर्ड काउंटर पे मैं डालूंगी। ये देखो 100 बहुत ज्यादा है, मैं तो ये एंड वाली सारी काट दूंगी लाइन। ठीक है, इतना ही काफी है। कितना आसान जी है कोई मुश्किल चीज? नहीं, मैं अभी ऑनलाइन चेक करूंगी, अगर इसकी डेट मिल रही होगी तो अभी फिल कर दूंगी बैठे बैठे। हाँ, तो रिटन एंड स्पोकन दोनों करना है इसमें, रीडिंग राइटिंग। और आपका पूरा जो टेस्ट है 2 घंटे 10 मिनट की लिस्ट की रीडिंग होती है खुद से ही। अब हम्म देखो सिर्फ रीडिंग राइटिंग के लिए ही आपको 2 घंटे 10 मिनट मिलते हैं, सिर्फ रीडिंग हम्म और राइटिंग के लिए। 30 मिनट अलग से लिसनिंग के होते हैं, हम्म ठीक है, और 12 मिनट की स्पीकिंग होती है इसकी। ओके। तो आसान। मैम ये या पेपर पेपर बेस्ड बेस्ड होगा? है ये भी, क्योंकि अभी पुराना है ना, ये तो पीडीएफ्स में है। कंप्यूटर बेस्ड है ये? हाँ, आप देख लीजिएगा, कोई पता नहीं उनके पास पेपर बेस्ड की भी ऑप्शन हो, लेकिन मैंने सुना नहीं है। ओके। हाँ, हो सकता है क्योंकि शुरू में ये पेपर बेस्ड ही था, जब बना था ना ये तो पेपर बेस्ड ही था। अगर मैम ये पेपर बेस्ड होगा तो पेपर बेस्ड सही रहता है या कंप्यूटर बेस्ड ये सही रहता मैंने है? वैसे किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखा वो करते पेपर बेस्ड, वो करते हैं उसको कंप्यूटर बेस्ड ही होता। कंप्यूटर। हाँ। ओके। हाँ, तो ये मुश्किल पेपर नहीं बेस्ड। होता टेस्ट इसके। मैंने आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, इसका जो मेन सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है अचीवर B1, नीचे लिखा होता है कि इस बंदे ने पास कर लिया है, ठीक है। हम्म चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। समझ आ गई हो? बहुत और ज्यादा मैम। बहुत ही आसान है, उसी तरह का ही है जैसे वो था। कुछ ना कुछ जी। समझ करके आप जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है। जो मैम आपने मेरे को लिंक भेजा, मैं इस पे जाके अपना एग्जाम हाँ, कर इसको सकती हूँ? अभी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ईसॉल अचीवर B1। सिर्फ और सिर्फ B1 को टारगेट करता है, जैसे कि ISC1 B1 सिर्फ B1 को टारगेट करता है और किसी लेवल को नहीं छेड़ता। ओके। हाँ, तो उसमें आप कर लीजिएगा। थैंक यू। इसी ठीक लिंक है। को करना है थैंक आपने, नहीं होगा तो एक दफा कॉल की कर लीजिएगा उनको, उनको बोलिएगा मैंने लैंग्वेज सर्ट, नाम देख लें, लैंग्वेज सर्ट अचीवर B1 करना है। हम्म कौन सा अचीवर? अचीवर B1। एंट्री लेवल 3 भी बोलिएगा, विद रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।